بحال کرنے پر مکمل اتفاق کرتے ہوئے اتحاد ہر صورت برقرار رکھنے کا عزم کیا۔ ذرائع کے مطابق نون لیگ نے پیپلز پارٹی کے ان ہاؤس تبدیلی کی مکمل حمایت کرنے کا عندیہ دے دیا۔ پی ڈی ایم ان ہاؤس تبدیلی، استعفوں، لانگ مارچ اور دھرنے کا آپشن استعمال کرے گی۔ پیپلز پارٹی نے استعفوں کے آپشن پر مکمل رضامندی کا اظہار کیا۔ ان ہاؤس تبدیلی کے آپشن کی ناکامی کی صورت میں پیپلز پارٹی کے استعفوں کے آپشن پر مشروط آمادگی ظاہر کر دی ہے۔ لانگ مارچ کے موقع پر استعفوں کا آپشن عوامی رد عمل پر منحصر ہوگا۔ دوسری جانب مریم نواز کہتی ہے بندہ تابعدار کے ساتھ بیٹھ کر قانون سازی نہیں ہو سکتی۔ جہاں عوام کی طاقت ہوگی وہاں نون لیگ کو شکست دینا ناممکن سی بات ہوگی۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا سارے حربے ایک نالائق کو بچانے کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ انصاف کے دوہرے نظام کے خلاف ہم آواز اٹھا رہے ہیں۔ لوگ ریمارکس کے فرق بھی دیکھ رہے ہیں، لوگ چہرے بھی دیکھ رہے ہیں، لوگ فیصلے بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نالائق اور نااہل کو بچانے کے لیے انصاف کا پورا نظام، عدلیہ کی عزت، ججوں کی عزت کو جھونکا جا رہا ہے۔ تو یہ ججز کے اوپر بھی بات گراں گزرتی ہے، کچھ مجبور بھی ہو سکتے ہیں، میں اس کو سمجھتی ہوں، لیکن عدلیہ کی کریڈیبلٹی کے لیے، ان کی عزت کے لیے یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اس کو میرا خیال ہے کہ ایک ایسے شخص کو بچانے کے لیے جس کے جانے کی دعائیں پورا پاکستان مانگ رہا ہے، اور جس کو گلی گلی محلے محلے لوگ القابات سے نواز رہے ہیں، جس نے نالائکی اور نااہلی سے آٹا چور، ووٹ چور، چینی چور، گیس چور، بجلی چور کے نام سے اس کو یاد کیا جا رہا ہے، ایسے شخص کو بچانے کے لیے عدلیہ اور عدل کا پورا نظام جھونکنا میرا نہیں خیال کہ کوئی عقل مندی ہے۔ اچھا میڈم جی بتائیے، دوسری بات یہ کہ آپ نے ویڈیو کی جہاں تک سوال کیا، تو ویڈیو بنانے والے بھی یہ خود، ویڈیو ریلیز کرنے والے بھی یہ خود، پیسے لینے والے بھی یہ خود، پیسے دینے والے بھی یہ خود، تو یہ کس کو بیوقوف بنا رہے ہیں بھائی؟ اور جب ایک وہ عمران خان صاحب اٹھ کے کہتے ہیں کہ ٹائمنگ نہ دیکھیں یہ دیکھیں، تو بھائی ٹائمنگ تو کیا کرایا تمہارا ہے، جب تمہیں ٹائمنگ سوٹ کرتی ہے تو تم سینٹ کا چیئرمین کا پورا الیکشن چوری کر لیتے ہو، کیونکہ وہ ٹائمنگ تمہیں سوٹ کرتی ہے۔ اب تمہارے ایم پی ایز اور ایم این ایز بھاگ رہے ہیں تو تمہیں ٹائمنگ یاد آ گئی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات سینیٹر شبلی فراز کہتے ہیں کہ اپوزیشن پرانا پاکستان چاہتی ہے جہاں ضمیر بیچے جاتے ہیں۔ پشاور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شبلی فراز کا کہنا تھا کہ اپوزیشن کی جانب سے سینٹ الیکشن کی شفافیت پر مخالفت سمجھ سے باہر ہے، شاید پیسے کے کلچر کو ختم کرنا چاہیے تھا۔ وزیر اعظم سینٹ انتخابات میں ووٹ کی خرید و فروخت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ سینٹ لڑنے کا، جیتنے کا، یہ دوسری دفعہ ہے جو پرائم منسٹر عمران خان نے مجھے یہ اعزاز بخشا، اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے اور بھی اکثر لوگ، ہمارے جو ایم این ایز بھی بنے، جن کو ٹکٹ بھی دیے گئے، نوجوانوں کو اور لوگوں کو، مقصد یہی ہے کہ اس میں ملک میں وہ لوگ آئیں جو کہ خدمت کا جذبہ بھی رکھتے ہیں، قابلیت بھی رکھتے ہیں، اہلیت بھی رکھتے ہیں، لیکن پیسے جیسے اس سے انفلوئنس ہوئے الیکشنز میں وہ حصہ نہیں لے سکتے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی ہمارا ایک کوشش ہے جس میں کہ ہم یہی امید کرتے ہیں، اور اپوزیشن کو بھی ہم بتانا چاہتے ہیں کہ ان کو عوام کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ وہ بعد میں اسی پہ اپنی جس طرح کے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ یہ خود ہی روئیں گے، پھر رونا نہیں ہے، کیونکہ پورا موقع دیا، ہم حکومت میں ہوتے ہوئے ہم نے یہ پورا موقع دیا اپوزیشن کو کہ وہ ایک ایسے اس میں آ جاتے اور اس نیک کام میں اپنا حصہ اگر ڈالتے تو ان کی جو تھوڑی بہت بچی ہوئی جو ایک ریپوٹیشن ہے وہ اس میں بھی فرق آ جاتا، لیکن نہیں، انہوں نے اپنے ماضی سے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کیا، نہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ وہی پرانا پاکستان جس میں کہ چیزیں پیسے کی بنیاد پہ ہوں، جس میں لوگوں کو خریدا جائے، لوگوں کے ضمیر خریدے جائیں، اس کو ختم نہیں کرنا چاہتے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ میں خیبر پختونخوا کی حکومت کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جو خاص طور پہ جو صحت کا جو کارڈ
यूनिवर्सल कार्ड जो दिया हुआ है उससे आप सब जानते हैं कि वो बिला तफरीक पूरे पॉपुलेशन, पूरी जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है उसको जो है तो वो दिया गया है, और इस तरह के और भी कई इक़दामात उठाए हैं। सेनेट इलेक्शन के लिए पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी के कागजात जमा, नामजदगी की तजवीज़ व तायीद कुनिंदा दो साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ और शाहिद खाका नवाजी हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि पीटीएम के तमाम फैसले इत्तफाक राय से होते हैं। जहांगीर तरीन से इलेक्शन के हवाले से बात नहीं हुई। हमारे जितने भी डिसीजंस होते हैं पीडीएम के, वो कंसेंसस के साथ होते हैं और एक दूसरे की राय के साथ होते हैं, और इसलिए सॉरी कि अगर आपसे राय नहीं ली गई, तो मगर हमने आपस में मुत्तफिक होकर फैसले किए हैं, तो इसलिए हम आई एम ग्रेटफुल टू माय ओन पार्टी एंड द पीडीएम लीडरशिप। ये फैसला पीडीएम ने किया है कि तमाम सेनेटर्स को, उम्मीदवारों को उन्होंने टिकटें दी हैं। अब उसमें कितने लोग कामयाब होंगे, वो जो मेजॉरिटी आएगी वो आपके सामने होगी, और अगर हमें वोट करेंगे तो वील बी थैंकफुल टू देम। मगर एक चीज़ मैं आपको वाज़े करना चाहता हूँ, जो लोगों ने मेरे साथ काम किया है एज अ स्पीकर ऑफ द नेशनल असेंबली और एज प्राइम मिनिस्टर, उनको पता है कि हमने कितने जुडिशियस तरीके के साथ असेंबली को चलाया है, और इसी तरीके से आपको मवाजना मालूम होगा। अगर हमें मौका मिला तो there will be a hell of a difference between the performance in the National Assembly and the Senate. खैरुलनिसा मुगल जो हैं उनको भी टिकट दी गई है, तो इसलिए इस्लामाबाद से जो हैं वो पीडीएम ने आपस में डिसीजन लिया है। मेरे ख्याल मुस्लिम लीग नवाज ने कैंडिडेट। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेनेट इलेक्शन के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। वजीर आजम की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों को फाइनल किया गया और वजीर आजम की मंजूरी के बाद हतमी नामों का ऐलान किया गया। तहरीक इंसाफ की जानिब से सेनेट इलेक्शन के लिए पंजाब से सैफुल्ला न्याजी, एजाज चौधरी, ऊन अब्बास, अली जफर और डॉक्टर जरका को उम्मीदवार नामजद किया गया है। सिंध से फैसल वावडा और सैफुल्ला आबड़ू उम्मीदवार होंगे, जबकि खैबर पख्तूनख्वा से शिबली फराज, मोहसिन अजीज, जिशान खानजादा, फैसल सलीम, नजीबुल्ला खटक, दोस्त मोहम्मद और डॉक्टर हुमायूं उम्मीदवारों में शामिल हैं। सानिया निश्तर, फलक नाज चित्राली और गुरदीप सिंह भी खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार होंगे। इस्लामाबाद से मुशीर खजाना हफीज शेख और फौजिया अरशद को उम्मीदवार नामजद किया गया है। बलोचिस्तान से अब्दुल कादिर तहरीक इंसाफ के सेनेट के उम्मीदवार होंगे। वफाकी दारुल हुकूमत में गैर कानूनी चैम्बर्स गिराए जाने के मामले पर वुकला एक बार फिर से बिफर गए। इस्लामाबाद बार काउंसिल और डिस्ट्रिक्ट बार के वुकला अपने साथी वुकला के चैम्बर्स गिराए जाने के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। आपको बताएं कि जबकि वुकला की बड़ी तादाद डी चौक पहुंच गई और उन्होंने डी चौक ब्लॉक कर दिया। वुकला के एहतजाज के मौका पर अमन व अमान की सूरत हाल काबू में रखने के लिए पुलिस की भारी नफरी तैनात है, जबकि वुकला को पार्लियामेंट हाउस जाने से रोकने के लिए रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। अब बात करेंगे कातिल वायरस की, तो कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गईं। वायरस 24 घंटों में मजीद 58 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 12,276 हो गई। मजीद 1,262 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। 5,61,600 अफराद कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। 5,23,700 अफराद सेहतियाब, जबकि 25,650 मरीज जेर इलाज हैं। कोरोना से मजीद 58 अफराद इंतकाल कर गए। पंजाब में 5,026, सिंध में 4,200, खैबर पख्तूनख्वा में 1,986, बलोचिस्तान में 198, गिलगित बल्तिस्तान में 102, आजाद कश्मीर में 281, इस्लामाबाद में 484 अमवात हो चुकी हैं। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 23,96,000 हो गई। मरीजों की तादाद 10 करोड़ 88 लाख तक जा पहुंची। 8 करोड़ 9 लाख मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। मौजी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। अमेरिका में 4,93,000, ब्राजील में 2,38,000, भारत में 1,56,000, रूस में 80,000, फ्रांस में 81,000, जबकि सऊदी अरब में 6,424 अमवात हो चुकी हैं।
गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं सेनेट इलेक्शन के लिए हुकूमत और इत्तेहादी जमातें एक पेज पर हैं। 3 मार्च को सेनेट इंतखाबात का मार्का भी पीटीआई जीतेगी। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने पार्टी वफूद से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 26 मार्च दूर है, पता नहीं पीडीएम लॉन्ग मार्च पर कायम रहती है या कि नहीं। हुकूमत मजबूत है, लॉन्ग मार्च से भी लॉन्ग मार्च का सामना करने को तैयार हैं। पीडीएम जमातें कभी एक पेज पर आई हैं और ना ही आइंदा आएंगी। शादरा के इलाका बेगमकोट चीमावाला खूह के करीब स्क्रैप के गोदामों से पोलियो वैक्सीन की बड़ी खेप बरामद। डीसी लाहौर समेत महकमा सेहत के अफसरान मौका पर पहुंच गए। आपको अहम खबर से अपडेट किया जा रहा है शादरा से, जहां पर शादरा के इलाके बेगमकोट चीमावाला खूह के करीब स्क्रैप के गोदामों से पोलियो वैक्सीन की बड़ी खेप बरामद कर ली गई। डीसी लाहौर समेत महकमा सेहत के अफसरान मौके पर पहुंच गए हैं। अहम खबर है जिससे मुतल्लिक आपको अपडेट किया जा रहा है। शादरा के इलाके बेगमकोट चीमावाला खो के करीब स्क्रैप के गोदामों से पोलियो वैक्सीन की बड़ी खेप बरामद। डीसी लाहौर समेत महकमा सेहत के अफसरान मौके पर पहुंच गए हैं। जी हां, महकमा सेहत के अफसरान मौके पर पहुंच गए हैं। शाहदरा के इलाके बेगमकोट चीमावाला खो के करीब स्क्रैप के गोदामों से पोलियो वैक्सीन की बड़ी खेप बरामद कर ली गई है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं। फिरोजवाला से हमारे नुमाइंदा मंसूर बेग हमारे साथ मौजूद हैं। अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, बड़ी सोचनाक बात है कि बेगमकोट छीमेवाला कुआं है, जहाँ पे एक जो स्क्रैप का गोदाम है, वहाँ पर जो पोलियो वैक्सीन है उसकी बड़ी एक खेप वहाँ से बरामद हुई है। और जबकि जो पोलियो मुहिम के बाद जो तमाम तर इस्तेमाल शुदा और गैर इस्तेमाल शुदा जो बाइल्स होती हैं, इनका वर्कर्स का काम होता है कि ये अपने महकमे को वापस करें। और जो रिपोर्ट्स भेजी जाती हैं उन पर भी एक सवालिया निशान है कि इतने याद जो वैक्सीन है वो किस तरह वो एक गोदाम के अंदर आई और यहाँ पर आकर वो वेस्ट की जा रही है। और ये भी बताता चलूँ कि उसकी जो एक्सपायरी डेट है इस वैक्सीन की वो 22 2 साल कबल तक यानी वो इस्तेमाल शुदा है और उससे पहले ही उसे जाया किया जा रहा है। इतनी याब जो पोलियो वैक्सीन हो, यहाँ पर जब से ये इतला मिली तो डीसी लाहौर और महकमा हेल्थ की टीम मौके पर पहुंच गई। उन्होंने पहुंचकर जब वहाँ पर जायजा लिया और लाखों की तादाद में वहां से वैक्सीन बरामद हुई। और वैक्सीन बरामद होने के बाद पुलिस को कॉल की गई है, पुलिस मौके पर पहुंची है और उसको गोदाम को सील करके इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई है कि इनके पास इतनी बड़ी जो खेप है वो कैसे आई है और ये जो पोलियो वैक्सीन थी किस तरह किन लोगों ने इन्हें फराहम की है। लेकिन एक अदारे के ऊपर एक सवालिया निशान ये बिल्कुल है कि अगर ये नायाब मेडिसिन जो पोलियो वैक्सीन है यहाँ पर एक स्क्रैप के गोदाम में मौजूद है, तो जो इतने बड़ा सेटअप जो इश्तिहारात दिए जाते हैं, जो कवरेज की जाती है, जो आला काम को जो रिपोर्टें दी जाती हैं, वो उन सब के ऊपर एक सवाली निशान है कि वो वैक्सीन किन बच्चों को पिलाई जाती है, आया कि उन बच्चों तक पहुंचती भी है कि इसी तरह वो वैक्सीन इस तरह वो गंदे जगहों के अंदर वो फेंक दी जाती है और उन्हें फरोख्त कर दिया जाता है। इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। डीसी लाहौर से भी बात हुई थी, उनका यही कहना है कि मैंने टीम तश्कील दी है और जैसे ही सामने कोई रिपोर्ट आती है जो जिम्मेदार इसके जो लोग उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी इंतजामिया पे सवालिया निशान है। मंसूर बेग, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। मजीद आगे बढ़े और आपको बताएं कि बन्नू मीरान शाह रोड गरबस के मकाम पर बारूदी मवाद का धमाका, दुकानदार जख्मी हो गया। धमाका एक दुकान में हुआ, दुकान को दूसरी बार निशाना बनाया गया, जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अहम खबर है, बन्नू मीरान शाह रोड गरबस के मकाम पर बारूदी मवाद का धमाका, दुकानदार जख्मी हो गया। धमाका एक दुकान में हुआ, दुकान को दूसरी बार निशाना बनाया गया, जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बन्नू में मीरान शाह रोड गिरब्स के मुकाम पर बारूदी मवाद का धमाका, दुकानदार जख्मी हो गया। धमाका एक दुकान में हुआ, दुकान को दूसरी बार निशाना बनाया गया, जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। बन्नू मीरान शाह रोड में एक जगह पर बारूदी मवाद का धमाका हुआ, दुकानदार जख्मी हो गया। धमाका एक दुकान में हुआ, दुकान को दूसरी बार निशाना बनाया गया। इससे पहले भी इस दुकान को निशाना बनाया गया था। जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जो कि बारूदी मवाद फटा तो धमाके से एक अफराद जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बन्नू मीरान शाह में बारूदी मवाद का धमाका, दुकानदार जख्मी हो गया। धमाका एक दुकान में हुआ, दुकान को दूसरी बार निशाना बनाया गया, जख्मी को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے فدا محمد سے. جی فدا، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، آج عصر کے وقت بنو میران شاہ سڑک پہ علاقہ گربز کے مقام پر ایک دکان میں بارودی مواد کا دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں دکاندار گلنور جو کہ سائیکل مرمتی کی دکان چلاتا تھا زخمی ہوا ہے. زخمی کو فوری طور پر ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال میران شاہ منتقل کر دیا گیا ہے. فدا محمد، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے. اہم خبر ہے جس سے متعلق آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ بنو میران شاہ روڈ گربز کے مقام پر بارودی مواد کا دھماکہ، دکاندار زخمی ہو گیا. دھماکہ ایک دکان میں ہوا، دکان کو دوسری بار نشانہ بنایا گیا، زخمی کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ آئین کے تحت انتخابات سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے، سینٹ کا الیکشن سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے سینیٹرز کو منتخب کرا لے گی. پارلیمنٹیرین پر پیسوں کا الزام لگانا غلط ہے، وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. ہماری پارٹی کا بھی موقف یہی ہے کہ آئین کے مطابق آرٹیکل 226 ہے، اس میں بہت واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ آئین کے تحت جو بھی الیکشن ہوں گے وہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوں گے. آئین اگر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اوپن ہونے چاہیے، سیکرٹ ہونے چاہیے، وہ ایک الگ بات ہوگی، اس کے لیے ایک آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، اس کے بغیر نہیں ہو سکتے. مجھے پورا یقین ہے کہ عدالت عظمیٰ اس بات کا پورا خیال رکھے گی کہ آئین کے مطابق فیصلہ کرے گی. سینٹ کا الیکشن سیکرٹ بیلٹ ہوتا ہے، سیکرٹ بیلٹ میں ممبر کی مرضی ہوتی ہے وہ کہاں ووٹ کریں. اگر وہ امیدوار ہی ایسے کھڑے کریں گے جیسے بھی ہو رہا ہے، آپ ادھر پیپلز پارٹی میں دیکھ لیں، ہم نے بھی امیدوار کھڑے کیے. آپ کو نام بتا دوں، سلیم مانوی والا صاحب میرے ساتھ کھڑے، ڈپٹی چیئرمین سینٹ رہ چکے ہیں، اس وقت ہیں بلکہ ڈپٹی چیئرمین سینٹ. فاروق نائک صاحب ہیں، چیئرمین سینٹ رہ چکے ہیں، وقتی صدر رہ چکے ہیں. شری رحمان صاحبہ ہماری سینئر سی سی کی ممبر ہے. آپ دیکھیں ہمارے لوگ ذرا دیکھ لیں. کچھ مزید ٹکٹ صحیح جاری ہوئے ہیں. کوئی ہوم ورک کر کے نہیں آتا، یہ نالائق سرکار ہے، وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی. عدالت میں یہ سارا کام کیا گیا، شیڈیول بہت تیزی میں انہوں نے وہاں آپ نے دیکھا جاری کر دیا تھا، اور جمعے اور سیٹرڈے کا دن تھا. بینکس میں اکاؤنٹس لوگوں کو کھولنے ہوتے ہیں، خاص اسپیشل ایکسپینسز کے لیے اکاؤنٹ کھولا جاتا ہے. صرف جمعے کی صبح تھی. پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا نامینیشن فارمز کافی ایکسٹینسو ہیں، لیکن پیپلز پارٹی نے درخواست بھی ڈالی کہ ٹکٹوں کی بھی ڈسٹریبیوشن، لوگوں سے بات کرنا، پی ڈی ایم کا بھی جو ہم جوائنٹ کرنا چاہ رہے تھے کچھ تو کیے ہیں، لیکن ہر چیز کے لیے 1-2 اور دن ہم نے مانگے تھے جو نارمل ہے. اس میں کوئی ایسی عجیب اور غریب درخواست نہیں تھی، آؤٹ آف دا وے کوئی ہم نے فیور نہیں مانگا. تو اب نامینیشن پیپرز ہمارے فل ہو گئے، ٹکٹیں ساری دے دی گئیں اور وقت پہ سارا کام کر دیا. پیپلز پارٹی صبح 8 بجے سے الیکشن کمیشن میں کھڑی ہے جی، کیونکہ ہم عدالتوں کا ای سی پی کا احترام کرتے ہیں. یہ ہمارے لیے محترم ہے، ہم کمپلین بھی ان سے کرتے ہیں اور ان کے بارے میں بھی کریں گے. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہم جب نامینیشن پیپرز سب جمع کرا چکے ہیں تو ریلیف دے دیا گیا. لگتا ہے کہ کچھ لوگوں کے پیپرز آرڈر میں نہیں ہیں، کچھ ٹکٹیں صحیح نہیں جاری ہوئی ہیں، اور ایز یوزول کون ہوتا ہے اس ملک میں جو ہوم ورک نہیں کر کے آیا ہے؟ کون ہے جو ہوم ورک نہیں کر کے آیا ہے؟ نالائق سرکار، تباہی سرکار. اور کون ہے جنہوں نے آج 15% کا الیکٹرسٹی نرخوں میں بم گرایا پاکستان پر؟ روز یہ کر رہے ہیں، آئے دن لوگ آپ کہہ رہے ہیں، ہم صبح اٹھتے ہیں اور ڈرتے ہیں کہ آج کون سا بم گرے گا ہم پر. کبھی پیٹرول کا گرتا ہے، کبھی بجلی کا گرتا ہے، کبھی گیس کا گرتا ہے. 200% نرخوں میں کمر توڑ اضافے ہوئے ہیں. کمر توڑ اضافے کے ساتھ باقی چیزوں کی آپ سونامی دیکھیے اور کہتے ہیں کہ بحالی آ رہی ہے ملک میں، اور ان کو نظر نہیں آ رہا ہے. ان کو نظر نہیں آ رہا. مسلم لیگ نون کے رہنما رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے اراکین ایسے ہیں جو اس سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ویڈیو اسکینڈل میں موجود لوگوں نے اعتراف کیا ہے کہ پی ٹی آئی اس میں ملوث تھی. یہ صرف سینٹ کے ووٹ کو قابل شناخت بنانا چاہتے ہیں. وہ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے.
2018 की है, उसे इस वक्त सामने लाने का मकसद ये है कि वो लोग जो पार्टी को वोट नहीं देना चाहते, जो पीटीआई के उम्मीदवारों को वोट नहीं देना चाहते, जो पीटीआई के डिसिप्लिन में नहीं हैं, क्योंकि पीटीआई इस वक्त अवाम के साथ, मुल्क के साथ जो जुल्म और ज़्यादती कर रही है और जिस तरह का स्टांस जो है वो इस वक्त अवाम में है, तो इसके बहुत सारे अराकीन ऐसे हैं कि जो खुद इनसे जान छुड़ाना चाहते हैं, तो उनको टेरराइज़ करने के लिए कि जी देखें ये वीडियो है और ये हम जो है वो इस तरह से आपको बदनाम करेंगे, तो उस मकसद के लिए जो है वो वीडियो लाई गई है। हालांकि वो वीडियो में जो लोग हैं उन सब ने कहा है कि ये सारा जो फसाड हुआ है, सारी जो करप्शन हुई है, इसमें पीटीआई खुद शामिल थी, पीटीआई की लीडरशिप जो है वो शामिल थी। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ वो जो इस वक्त सेनेट के वोट को आइडेंटिफाइएबल करना चाहते हैं, उसका मकसद भी यही है और इस वीडियो को चलाने का भी जो है वो मकसद यही है। लेकिन इस मकसद में ये जो सिलेक्टेड टोला है ये बुरी तरह से नाकाम होगा, क्योंकि अब इनके मुंह से, इनके चेहरे से नकाब जो है वो उठ चुका है और ये बिल्कुल अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा है कि पीटीएम और जमात इस्लामी का एजेंडा अलग अलग है। ये जालिम जगीरदारों और करप्ट सरमायादारों की सियासत है। दौलत की बुनियाद पर लोगों को खरीदा जाता है। जी हाँ, उनका कहना था कि दौलत की बुनियाद पर लोगों को खरीदा जाता है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा कि पीडीएम और जमात इस्लामी का एजेंडा अलग अलग है। ये जालिम जागीरदारों और करप्ट सरमायादारों की सियासत है। दौलत की बुनियाद पर लोगों को खरीदा जाता है। वजीर खजाना अब्दुल हफीज शेख का कहना है कि अरकान कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को कामयाब करवाएंगे। अब्दुल हफीज शेख का कहना था कि जमहूरी अमल में एक से ज्यादा लोग मुकाबला करते हैं और पाकिस्तान के जमहूरी अमल पर हम सबको फख्र है। उनका कहना था कि सेनेट पाकिस्तान के तमाम इलाकों को अच्छे अंदाज से नुमाइंदगी देता है और पाकिस्तान की अवाम की उमंगें पूरा करना सियासत का मकसद है। वफाकी वज़ीर दिफा परवेज खट्टर का कहना है कि कोई साबित करके दिखाए कि मैंने कभी किसी को वोट का लालच दिया या वोट के लिए किसी को पैसे दिए हों। वज़ीर दिफा परवेज खट्टर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सबको पता है कि किस घर में पैसे तकसीम हुए और किसने तकसीम किए। इसी घर का अरबपति आदमी आज फिर गेम खेलने के लिए खड़ा है। उन्होंने कहा कि मेरा ज़मीर साफ है, झूठे इल्ज़ाम लगाने वालों का मुंह काला होगा। मीडिया पर वीडियो देखकर हंसी भी आती है और परेशान भी होता हूं। परवेज खट्टर ने कहा कि सेनेट के साबिका इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग और वीडियो लीक के मामले पर अपोजिशन समेत मीडिया बाखबर है। मुझे और स्पीकर को बदनाम करने के लिए प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से सेनेट इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया गया। जमात इस्लामी ने सेनेट इंतखाबात के लिए जर्नल नशिस्त पर साबिक रुकन कौमी असम्बली मौलाना डॉक्टर अताउर रहमान को नामजद किया, जबकि टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर साबिक जिला नायब नाजिम पिशावर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल खलील को नामजद किया गया। खातीन की मखसूस नशिस्त पर जमात इस्लामी ने साबिक रुकन कौमी असम्बली अनायत बेगम को नामजद किया है, जबकि अकलियतों की नशिस्त पर जावेद गिल को नामजद किया गया है। वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि जापान की मियावाकी टेक्निक की तर्ज पर शहर शजरकारी का आगाज कर दिया गया है। ट्विटर वजीर आज़म इमरान खान का कहना है कि जापान की मियावाकी टेक्निक की तर्ज पर शहरी शजरकारी का आगाज कर दिया गया है। इस टेक्निक के जरिए दरख्त 10 गुना ज्यादा नशोनुमा, 30 गुना ज्यादा घने होते हैं। वजीर आज़म ने कहा कि आलूदगी से लड़ने का बेहतरीन तरीका है। लाहौर में 50 साइट्स का इंतखाब किया गया है, जबकि पहला तजर्बा लेबॉर्ट्री चौक पर 2020 में किया गया था।
एहतसाब अदालत ने साफ पानी ज़िमनी रेफरेंस में साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ के दामाद और बेटी के खिलाफ इश्तिहार की कार्रवाई का आगाज कर दिया। अदालत ने दोनों मुल्जिमान की तलबी के इश्तिहारात अभिज़ा कर दिए। एहतसाब अदालत के जज अफजल नज़ीर चौधरी ने साफ पानी कंपनी ज़िमनी रेफरेंस की समाअत की। दौरान समाअत पुलिस के सब इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट पेश की और बताया कि राबिया इमरान और इमरान अली यूसुफ के इश्तिहारात आवीज़ा कर दिए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एहतसाब अदालत के बाहर भी शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान और दामाद को इश्तिहारी करार देने के लिए इश्तिहार आवेज़ा कर दिए गए। कराची के इलाके शराफी घोट में तेज रफ्तार गाड़ी की रेंजर्स की मोबाइल को टक्कर के नतीजे में एक रेंजर्स एहलकार शहीद जबकि 2 एहलकार समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। शराफी गोट शाह फैसल पुल पर तेज रफ्तार गाड़ी ने स्नैप ट्रैकिंग पर मामूर रेंजर्स की मोबाइल को टक्कर मार दी। हादसे के नतीजे में मोबाइल में मौजूद 3 रेंजर्स एहलकार समेत गाड़ी में सवार 4 अफराद भी शदीद जख्मी हुए। हादसे के बाद तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। ताहम दौरान इलाज एक रेंजर्स हलाक शहीद हो गया जिसकी शनाख्त हवलदार मोहम्मद तुफैल के नाम से हुई है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि डीजी खान राजनपुर के कबायली इलाकों में डैम्स बनाएंगे। डैम्स बनाने की फिजिबिलिटी स्टडी के लिए नेस्पाक से मुआहिदा किया है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट के लिए 1 अरब 25 करोड़ के फंड फराहम कर दिए। वजीर आला पंजाब का मजीद कहना है कि कोह सुलेमान में मरहलावार 4 दरमियाने दर्जे के डैम्स बनेंगे। पहले डैम की तामीर के पायलट प्रोजेक्ट का आगाज जून में होगा। डैम्स बनने से 2 लाख से ज्यादा एकड़ अराजी सैराब होगी। वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर नूरुल हक कादरी ने कहा कि सऊदी अरब ने हज 2021 के सिलसिले में पाकिस्तान के साथ अभी तक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत नहीं किए। पाकिस्तानी हाजियों के लिए शराइत में नरमी पर सऊदी हुकाम से बातचीत करेंगे। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि सऊदी अरब को हज पर आने वालों के लिए कवायद और ज़वाबित बनाने से पहले कोरोना की सूरत हाल वाज़ेह होने का इंतजार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हुकूमत हज के दौरान लोगों को पेश आने वाले मसाइल से बाखूबी वाकिफ है। इस हवाले से सऊदी हुकूमत से मुसलसल राब्ते में है। बात करेंगे महंगाई की तो हफ्तावार महंगाई की शरह 9.17% हो गई। मुल्क में चीनी और आटे की कीमतों में दोबारा इजाफा होने लगा है। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते में चीनी की औसत कीमत 3 रुपए 37 पैसे फी किलो बढ़ गई। आटे का 20 किलो का थैला 23 रुपए 88 पैसे महंगा हो गया। मुर्गी 11 रुपए 47 पैसे फी किलो, अंडा फी दर्जन 6 रुपए 80 पैसे महंगा हो गए हैं। इदारा शुमारियात की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आटे का थैला 970 रुपए 18 पैसे महंगा हो गया। एक हफ्ते में मुर्गी 11 रुपए 47 पैसे फी किलो बढ़ गई। अंडे फी दर्जन 6 रुपए 80 पैसे महंगे हुए हैं। अब बात करेंगे मौसम की सूरत हाल की। मौसम ने अंगड़ाई ली और धूप ने झलक दिखाई तो सयाहों ने समात का रुख कर लिया। रवा हफ्ते में लाखों सयाहों ने सबात आकर डूबते सियाहत को किनारा दिया। मजीद अहवाल जानते हैं लाल शेर खान की इस रिपोर्ट में। सवात के सयाहती मुकामात ने सयाहों को अपनी तरफ खींच ले आई। रवा हफ्ते में लाखों की तादाद में सयाहों ने वादी सवात का रुख करके सयाहती मुकामात को रौनक बख्शी। मेरा नाम मलिया नौमान है, मैं कराची से आई हूँ और ये जगह बहुत खूबसूरत है और सबको इधर आना चाहिए। इतना सुकून है यहाँ पे। स्वात के सयाहती मुकामात मलम जब्बा, कालाम, बहरैन और दीगर सयाहती स्पॉट में सयाहों ने डेरे डाल दिए। वादी सवात की खूबसूरत नज़ारों और बर्फपोश पहाड़ों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। स्वात में सयाहत को फ़रोग़ मिलने के साथ साथ मुकामी लोगों के कारोबार फिर से चमक उठे और एक बार फिर उम्मीद जाहिर किया जा रहा है कि उस साल रिकॉर्ड तोड़ सयाह स्वात आएंगे।
जो कि एक नेक शगुन है। लाल शेर खान, ब्यूरो चीफ, टीवी टुडे, स्वात। मौसम ने खबर शामिल करेंगे आलमी मंजरनामे से।